Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of SYSC Economics, Chapter 3A, Part 6. Dear friends, in our some of the last session, we have discussed about law of demand. That was higher the price, lower is the demand, and lower the price, higher is the demand. अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसका डिमांड कम है, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसका डिमांड ज़्यादा है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन एग्जाम्पल. 1.5 लाख रुपए का प्लाज्मा टीवी बेचने वाली कंपनी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रोज के 10 टीवी तो यूं बेच देंगे, लेकिन रोड पे लेडीज सैंडल जो बेचने बैठा है लोटस ले 60 रुपया 60 रुपया, वो ये जरूर सोच सकता है कि मैं रोज के 100 पेड़ तो यूं बेच दूँ. तो जो चीज़ का प्राइस ज़्यादा उसका डिमांड कम, जो चीज़ का प्राइस कम उसका डिमांड ज़्यादा. डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. In chapter 2, when we have covered the topic of exceptions to law of DMU. What was law of DMU? Other things remain constant. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a quick manner, continuous manner, he gets lesser and lesser utility from it. अगर कोई एक बंदा एक की चीज बार बार लगातार इस्तेमाल करेगा तो थोड़े वक्त के बाद वो थक जाएगा, पक जाएगा, उब जाएगा. दैट वाज लॉ ऑफ DMU. एंड एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज एक्सेप्शंस. इट इज ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल ट्रेंड, डू समथिंग डिफरेंट, बिहेव इन ऑपोजिट मैनर. व्हाट वाज लॉ ऑफ DMU? अगर आप एक की चीज कंज्यूम करोगे तो थक जाओगे, पक जाओगे, उब जाओगे. And what were exceptions to law of DMU? Hobbies, miser, drunkard, reading, music and money. In these 6 examples we have discussed, even after continuous consumption, our MU does not decrease, it increases. But at the end of that topic, we have clarified it, that all these exceptions are not real. But in today's session, total we have 8 exceptions and all of these are real exceptions to law of demand. Friends, law of demand बोल रहा है कि जो चीज़ महंगी है उसका डिमांड कम होता है और जो चीज़ सस्ती है उसका डिमांड ज़्यादा होता है. बट टुडे आई हैव 8 एग्जाम्पल्स विथ मी, 8 एग्जाम्पल्स इन थियरी विथ मी, इन विच आई कैन प्रूव कि इवन एट हायर प्राइस पीपल आर रेडी टू बाई मोर, people are ready to increase the demand, or even at lower price people are not ready to buy at all. मतलब महंगा होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा खरीदने को तैयार है, या फिर सस्ता होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदने को तैयार नहीं है. तो इट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड दैट इज एक्सेप्शंस टू law of demand, because law of demand is saying higher the price, lower is the demand, lower the price, higher is the demand. And exceptions to law of demand will prove this, कि it is our psychology. Even at higher price we are ready to buy, or even at lower price we are not ready to buy. महंगा है फिर भी मैं खरीदने को तैयार हूँ, मुझे उसका डिमांड बढ़ाना है, या फिर सस्ता होने के बावजूद भी मैं उसे खरीदने को तैयार नहीं हूँ, मुझे उसका डिमांड नहीं बढ़ाना है. तो दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. सो वी कैन डिस्कस 8 डिफरेंट पॉइंट्स विथ 8 डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. सो गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. Exceptions to law of demand. First point, Giffen's paradox. Giffen's paradox.
फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीफन। फ्रेंड्स, ये इको के एक प्रोफेसर का नाम है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीफन, in case of inferior poor quality, inferior, that is poor quality, in case of inferior quality products, in case of inferior quality products like bread, comma, people will not demand more of bread, people will not demand more of bread, more of bread, even at lower price, even at lower price, comma, but instead of that, with some extra purchasing power, with some extra purchasing power, with some extra purchasing power, people will shift their demand, people will shift their demand from inferior quality, from inferior quality to superior quality product, superior quality product sorry, like butter, like butter, full stop. Now see dear friends, what we have written, let me explain you an example in my own language. पैराडॉक्स का मतलब होता है ऑपोजिट बिहेवियर। प्रोफेसर जीफन ने अल्फ्रेड मार्शल को ऐसा कहा कि मार्शल, वॉट एवर यू आर सेइंग दैट हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ जीफन्स गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन केस ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रास्ते का माल सस्ते में, उस मामले में तेरा लो ऑफ डिमांड गलत जा रहा है। और क्यों ऐसा होगा? तो बोले इन केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, ब्रिटानिया ब्रेड कंपनी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो ब्रिटानिया ब्रेड की प्राइस कम कर देंगे तो लोग ब्रेड की डिमांड बढ़ा देंगे। नहीं फ्रेंड्स, इट विल नॉट हैपन। जो भी पैसा पब्लिक का बचेगा ब्रेड की प्राइस कम होने की वजह से, उसमें से पब्लिक ज़्यादा ब्रेड डिमांड नहीं करेगी। जो पैसा बचा है उसमें से पब्लिक ट्राई करेगी कि वो थोड़ा सा चीज़, पनीर, बटर, ऐसा कुछ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करें। इट मीन्स ब्रिटानिया ब्रेड कंपनी के मामले में लो ऑफ डिमांड इज रॉन्ग बिकॉज इवन एट लोअर प्राइस पीपल विल नॉट डिमांड मोर ऑफ ब्रेड। इंस्टेड ऑफ दैट, विथ सम एक्स्ट्रा मनी पावर इन देयर हैंड, दे विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ ब्रेड to superior quality product of butter, cheese, paneer, jam, sauce or something else। एकदम आसान सा एग्जांपल समझाऊं तो सपोज, और जब मैं सपोज बोल रहा हूँ मतलब उसमें कोई वर्ड राइट नहीं है। सपोज कोई एक संडे मॉर्निंग मेरी बीवी ने लात मार के मेरे को उठाया और कहा कि आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे छेड़ना नहीं, वाला छोड़ूंगी नहीं, और जो नाश्ता करना है नीचे आके खुद लेकर आओ। तो लुंगी के ऊपर शर्ट डाल के मैं कुछ खुले पैसे लेकर, चेंज लेकर नीचे पान के गल्ले पे गया और मेरे 10 का नोट दिया और कहा कि ब्रिटानिया ब्रेड का छोटा पैकेट जो है वो तुम मुझे दे दो। वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप तो इको के प्रोफेसर हो। मैंने कहा क्यों, इको का प्रोफेसर ब्रेड नहीं खाता? बोले आज आप खरीदने आए हो, कभी आते नहीं हो। अरे भाई आया तो क्या गुनाह कर दिया?
बोले नहीं सर, आपको पता होगा ना कि ब्रिटानिया ब्रेड ने प्राइस कम करके 6 रुपया कर दिया है। अब जैसे ही मैं ये सुनता हूँ कि 10 रुपये के बदले प्राइस सपोज 6 रुपीज़ हो गया है छोटे पैकेट का प्राइस, तो क्या मैं उसको 2 रुपया और देके ये बोलूँ कि हाँ तो 2 पैकेट दे दे? अरे भाई मेरी साइज से देखो, अगर छोटा सा पैकेट आज खरीदा तो भी 3 दिन तक चलेगा, शायद चौथे दिन बीवी कुत्ते को बुला यू तू भी खा वो खाए, सब एक ही है। ओके फ्रेंड्स, मैं उसे यही बोलूँगा कि तू 2 रुपया और ले, अब 12 रुपया हो गया और 2 ब्रेड का पैकेट दे दे। नो फ्रेंड्स, व्हाट आई विल डू, मैं उसको 1 रुपया और देकर बोलूँगा कि तू एक मुझे अमूल का मिनी बटर पैकेट आता है, अटली बटली डिलीशियस अमूल, क्योंकि काय को खाली फुकट का 1 रुपया ज़्यादा देकर अगर मुझे बटर के साथ ब्रेड खाने को मिलता है तो रूखा सूखा चाय और ब्रेड काय को खाऊं, मस्त बीवी को भी चलाऊंगा, बटर लगाते हुए ब्रेड खाऊंगा। इट मीन्स विथ दैट एक्स्ट्रा 4 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये का प्राइस 6 रुपया हो गया तो 4 रुपया बच गया, उसमें 1 रुपया और डाल के बटर मिल रहा है, तो मैं ब्रेड के 2 पैकेट नहीं खरीदूंगा। तो ब्रिटानिया ब्रेड को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्राइस कम कर देंगे ना तो ब्रेड की डिमांड बढ़ेगी। अगर ब्रेड बहुत सस्ते हो जाएंगे तो क्या सैंडविच वाला आपको डबल ब्रेड के बदले ट्रिपल लेयर ब्रेड लगा के देगा? नहीं फ्रेंड्स, ब्रेड आप जितना खाते हो उतना ही खाओगे। तो इवन एट लोअर प्राइस ब्रिटानिया ब्रेड का डिमांड बढ़ेगा नहीं, इट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशन और स्पेक्यूलेशन। एक्सपेक्टेशन और स्पेक्यूलेशन। एक्सपेक्टेशन फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस वर्ड अलग है, एक्सपेक्टेशन वर्ड अलग है। तो एक्सपेक्टेशन और स्पेक्यूलेशन, अंडरलाइन, राइट डाउन। if the price of any commodity is expected to rise, expected, expected to rise in near future, people are ready to buy more at present even at higher price, full stop. Friends, we have already discussed once the concept of future expectation. याद करो, मेरी मम्मी का किराने की दुकान पे जाना और लिस्ट में शक्कर ना लिखाना और दुकान वाले का ये बोलना कि मैडम अगले हफ्ते से शक्कर का भाव 5 रुपया बढ़ जाएगा, हैं 5 किलो और भेज दो। फ्रेंड्स, माई मॉम वॉज रेडी टू बाय मोर शुगर इवन एट हायर प्राइस बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बाद में 5 रुपया बढ़ेगा ये सुनकर अब भी ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद भी मेरी मम्मी ज़्यादा शक्कर खरीदने को तैयार हो जाएगी। दैट इज एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है, स्पेक्यूलेशन। फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेशन का सबसे आसान मतलब होता है सट्टा, जुआ, तीन पत्ती, आंकड़ा, मटका, कैसीनो। दिल को 1000 बार रोका रोका रोका। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार हिंदी में कहावत सुनी होगी कि हारा हुआ जुआरी दुगना खेलता है। उसे लगता है कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगा और पूरा लॉस वसूल कर लूंगा।
फ्रेंड्स सट्टे के मामले में लॉ ऑफ डिमांड हमेशा उल्टा खेल खेलता है। अगर आपको कभी आईपीएल मैच समझ में आया हो, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कुछ साल पहले ये दोनों टीम को फ्रेंड्स रेस्ट्रिकेट किया गया था बाय कोर्ट, बाय लॉ, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ स्पेक्यूलेशन, इन्वॉल्वमेंट, मैच फिक्सिंग, बेटिंग, सट्टा। अगर आपने कभी जन्नत मूवी देखा हो फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेशन का एक लफड़ा ये होता है कि इसमें पब्लिक कभी नहीं जीतती है। जो बुकी होता है, जो ये पूरा सेटिंग करता है, वही जीतेगा। और उसका रीज़न क्या है? सट्टे का रूल जो है वो ये होता है कि जो टीम हारने वाली होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है और जो टीम जीतने वाली होती है उसका प्राइस कम होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सपोज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये दो टीम क्रिकेट मैच में फाइनल में पहुंच गई हैं। अब अगर सबको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम है और इंडिया वीक टीम है, तो सट्टे का जो प्राइस लगेगा तो साउथ अफ्रीका का प्राइस होगा 50 पैसे और इंडिया का प्राइस होगा 2.5 रुपया। नाउ व्हाट डज इट मीन? सपोज आपने 1 रुपया अगर साउथ अफ्रीका के ऊपर लगाया है और साउथ अफ्रीका फेवरेट टीम है, सबको लग रहा है कि वही जीतेगी, और अगर वो जीत गई तो आपको आपका 1 रुपया और ऊपर अठन्नी मतलब 1.5 रुपया वापस मिलेगा। अब सबको लग रहा है कि इंडिया तो वीक टीम है, हारने वाली टीम है, और मैंने अपना 1 रुपया इंडिया पे लगाया और अगर इंडिया जीत गया तो फ्रेंड्स मुझे 3.5 रुपये मिलेंगे। 1 रुपया मेरा खुद का और 2.5 रुपया एक्स्ट्रा। स्पेक्यूलेशन के मामले में, सट्टे के मामले में जो टीम जीतने वाली होती है उसका प्राइस कम होता है और जो टीम हारने वाली होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है। नॉर्मली पब्लिक जिस टीम पे पैसा लगाती है, बुकी अपना पैसा उसकी उलट टीम पे लगाएगा और बाद में मैच फिक्सिंग और बेटिंग करा के, सेटिंग करा के वो हारने वाली टीम को जिता देगा। मतलब पब्लिक का पूरा पैसा उसके पास आ गया। इट इज स्पेक्यूलेशन। ओके फ्रेंड्स, मुझे हर तरह का जुआ आता है। मैं खेलता कभी नहीं हूँ, बाकी मुझे हर तरह का जुआ समझता है क्योंकि इट इज इकोनॉमिक माइंड। तो इन केस ऑफ एक्सपेक्टेशन और स्पेक्यूलेशन, विच इज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पीपल आर रेडी टू बाई मोर इवन एट हायर प्राइस। और जीतने वाली टीम का पैसा कम है और हारने वाली टीम का पैसा ज़्यादा है। दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड वन, गिव द हेडिंग प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन, ILLUSION, प्राइस इल्यूजन। Underline, write down. In case of price illusion, in case of price illusion, some of the people think that costly products are of better quality. Costly products are of better quality, and so they are ready to purchase even at higher price. They are ready to purchase even at higher price. Full stop. Now see what is price illusion. पहले समझ लो what is illusion. Illusion ये मन की एक बीमारी है फ्रेंड्स। इसमें इमेजिनेशन क्रिएट होता है जिसमें अपने मन में ऐसा कुछ घुस चुका है जो रियल नहीं है, पर हम ये फील कर रहे हैं कि हाँ ये है। फ्रेंड्स, ये प्राइस इल्यूजन ये बहुत लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक बीमारी का नाम है। ये मेरे पिताजी को भी थी, नाउ ही इज नो मोर, पर ये मेरे पिताजी को भी थी। उनके दिमाग में ये घुस चुका था कि जो चीज़ महंगी होती है वही अच्छी होती है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो हमेशा महंगे प्रोडक्ट का ही डिमांड ज़्यादा करते थे। मुझे बराबर से याद है फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले जब मुझे बहुत सारे लेक्चर लेने हो तो मम्मी पापा को ये बोलती थी कि आप नींबू लेकर आइए, प्रशांत को नींबू पानी पिलाएंगे तो थोड़ा एनर्जी रहेगा। अब मेरे घर के नज़दीक में ही 2 मिनट के डिस्टेंस पे एक नींबू वाला बैठता था, पर मेरे पिताजी 15 मिनट दूर स्पेशल नींबू वाले के पास जाके वहाँ से नींबू खरीदते थे। और वहाँ पे भी वो क्या बिहेव करते थे, नींबू वाले को पूछते थे कि तेरे पास कौन से नींबू है। अब उसने बताया कि ये 1 रुपये का एक, ये 2 रुपये का एक, ये 5 रुपये का एक। तो पिताजी कुछ भी देखे सोचे बगैर बोल देंगे कि ये 5 रुपये वाले ना वो 5 दे दे। पापा को ऐसा लगता था कि अगर ये 5 रुपये वाले नींबू में से नींबू पानी बनेगा तो प्रशांत अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएगा। कभी कभार ऐसा होता था कि वो 5 रुपये वाले नींबू नहीं होते थे तो पापा नींबू लिए बगैर वापस आ जाते थे कि प्रशांत को मिल्क शेक पिला दो। मतलब माय डैड वॉज रेडी टू बाई मोर लेमन्स even at higher price. It was price illusion. It was breaking of law of demand. अगर सस्ते नींबू मिल रहे हैं तो खरीदेंगे ही नहीं, अगर महंगे नींबू मिल रहे हैं तो और खरीदने को तैयार थे। तो इट वॉज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि जो महंगा है वो बेहतर है और इसीलिए वही चीज़ खरीदो भले वो महंगी हो। तो इट वॉज प्राइस इल्यूजन, दैट इज exceptions to law of demand. Third point. Now fourth point. Give the heading fourth point. Ignorance. Fourth point is ignorance. Underline, write down. Sometimes, कभी कभार, sometimes, people are purchasing more products even at higher price because of ignorance or lack of knowledge of actual price. Lack of knowledge of actual price. Friends, what happens sometimes कि because of ignorance we don't know what should be the actual price of this product, and because of that reason we purchase that product even at higher price. It is also breaking of law of demand. हमें पता नहीं कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा प्राइस देकर आते हैं, खरीद के आते हैं और खुश होते हैं कि हमने सस्ते में लिया। एक्चुअली उसका प्राइस ज़्यादा हम देकर आए हैं क्योंकि हमें रियल प्राइस पता नहीं है कि वो क्या होना चाहिए। बहुत बार लेडीज़ के मामले में, गर्ल्स के मामले में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। अगर कोई लड़की सपोज बॉबी पिन, हेयर पिन खरीदने के लिए मार्केट में जाती है, एक एसी शोरूम में उसने एंट्री मारा और कहा एक्सक्यूज मी, शो मी दैट हार्ट शेप डायमंड या विद डायमंड, या प्लीज शो मी दैट हेयर पिन, या व्हाट्स द प्राइस मैम? 55 रुपीज़। थोड़ा कम करके बोलिए। अब देखो, मम्मी ने इतना सिखाया था कि जो भी वो प्राइस बोले उसमें कम कराने का, कितना वो नहीं पता था। अब एसी शोरूम में है, वो बोल रहा है कि मैम इट इज़ फिक्स प्राइस। नहीं, वो तो सब आप लोग बोलते रहते हो, मुझे बताओ चलो कितने का। नहीं मैम फिक्स प्राइस। मेरे लिए कितने का? अब सपोज आधे घंटे की भेजा बच्ची के बाद उस शॉपकीपर ने प्राइस 45 रुपीज़ कर दिया तो ये खुश हो जाएगी, अच्छे से पैक करके दीजिए। पहले बोल दिया था तो मेरा हाफ एन आवर बच जाता था। चलो ठीक है। सपोज पैक करके शोरूम के बाहर निकली और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसको मिल गई जो सुबह ही कॉलेज में मिली थी, शाम को वापस यहाँ पे मिल गई, तो दोनों ऐसे मिलेंगे जैसे सालों बाद मिले हो। ओ हाय, इतना लंबा है कि चर्चगेट तक चला जाएगा।
और खुश होकर बताएगी कि देख मैंने ये हेयर पिन खरीदा, बॉबी पिन हेयर पिन खरीदा, 55 बोल रहा था 45 में खरीदा। सामने फ्रेंड बोलेगी तू पागल है क्या, ये बाहर 25 रुपये में मिल रहा है। नहीं वो ये नहीं होता है, चल मैं तेरे को बताऊँ। अब वो फुटपाथ पे लेकर गई और सेम बॉबी पिन हेयर पिन निकाल के बोलती है देख भैया जी कितने का, 25 का है ना, देख। तो बोलती नहीं शाइनिंग में फर्क है, अरे ये प्लास्टिक का बैग का शाइनिंग है, ये निकाल दिया रिक्शे में। अब मजे की बात देखो, 25 रुपये की चीज़ का ये 45 देकर आई है, मन में खुश थी कि मैंने 10 रुपया कम कराया। सो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्चुअल प्राइस, दैट गर्ल इज रेडी टू परचेज दैट बॉबी पिन हेयर पिन इवन एट हायर प्राइस. It was breaking of law of demand. That was our fourth point. Fifth point, advertisement effect. Advertisement effect. Underline right now. Because of advertisement effect, people are ready to spend more money. People are ready to spend more money normally in case of cosmetics. Normally in case of कॉस्मेटिक्स. फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा हिंदी स्लोगन है, जो दिखता है वो बिकता है और वो महंगे में बिकता है क्योंकि वो टीवी की एड में दिखता है. फ्रेंड्स मैं कितना ही अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, लेकिन अगर मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो लोग मुझे ज़्यादा फीस देने को तैयार नहीं है. अगर मेरा एड आने लगे तो मैं कितना भी फालतू पढ़ाऊं, लोग मुझे ज़्यादा फीस देने को तैयार हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ सम एडवर्टीजमेंट इफेक्ट, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी कि टीवी की एड में जो दिखता है वो बिकता है और वो महंगे में बिकता है. दिस इज फैक्ट फ्रेंड्स. ये गर्ल्स जो नेल पेंट लगाती है, नेल पेंट, लेट मी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेट मी. फ्रेंड्स ये एक्चुअली स्पीकिंग पूरा नेल पेंट का अगर मैं टोटल कॉस्ट सोचूं तो इट शुड बी नॉर्मली विद इन 20 रुपीज. लेकिन जैसे ही टीवी पे इसकी लंबी सी एड आ जाती है 25 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की, तो इसका नॉर्मल प्राइस जो है वो सीधा पहुंच जाएगा 115 रुपीज. और जब मॉल में से खरीदने को जाए तो 195 रुपीज. एंड देन टू गर्ल्स आर रेडी टू बाय दैट लैक्मे प्रोडक्ट क्योंकि टीवी की एड में दिखता है तो महंगे में बिकता है. तो दैट इज एडवर्टीजमेंट इफेक्ट. आवर सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेस्टीज गुड्स. फ्रेंड्स ये प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की बात नहीं है, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार. ये अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की बात नहीं है. प्रेस्टीज गुड्स, अंडरलाइन राइट डाउन. In case of prestige goods, people are always ready to purchase costlier products. फुल स्टॉप. फ्रेंड्स प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है ये वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स है जो समाज में आप दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए खरीदते हैं. उसका कोई एक्चुअल यूज हो या ना हो डजंट मैटर. आप उसे इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि समाज में आपका रुतबा बढ़े, शाइनिंग मारने के लिए, शो ऑफ, प्रेस्टीज. सपोज बोल रहा हूं. जब भी मैं सपोज बोलूं समझ जाओ इसका एक वर्ड भी सही नहीं है. सपोज आई हैव
one very nice, pretty, beautiful girlfriend with me. So pretty, so fair, so beautiful. And suppose today it's her birthday, और सुबह सुबह मैंने उसको पूछ लिया, डार्लिंग व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. मुझे लगा कि वो कहेगी बस तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए. उसने बोल दिया 1 डायमंड नेकलेस फ्रॉम यू. अब पूछा था तो भूख तो हाथ में हाथ डाल के लेकर गया. पीसी ज्वेलर्स. एक्सक्यूज मी, मे यू सम डेलिकेट डायमंड नेकलेस फॉर मैम? या श्योर सर. दिस वन इज फॉर 2.5 lakhs, दिस वन इज फॉर 3 lakhs. उसने हमें दो बताए, ये 2.5 लाख का है, ये 3 लाख का है. कुछ भी समझे कि ये बगैर तुरंत मुझे इशारा करेगी. दिस वन इज नाइस. विच वन इज नाइस? 3 lakhs वाला नाइस. मैं बोल रहा हूँ कि ये कोल्हापुरी डिजाइन है, ये इटालियन पैटर्न है, ये खरीदते 2.5 लाख वाला नहीं. दैट वन इज नाइस, क्योंकि वो 3 लाख का है. उसको डायमंड में कुछ समझता नहीं है, उसको डिजाइन में भी कुछ समझता नहीं है. उसको कुछ समझता होता तो चलिए मेरी गर्लफ्रेंड होती. उसको कुछ समझता नहीं है. उसको इतना समझता है कि 3 लाख वाला है ना वो अच्छा है, क्योंकि वो 3 लाख वाला है, वो महंगा है. आपको पता है मजा कब आया? जब वो 3 लाख का नेकलेस पहनकर बर्थडे पार्टी में जाए. ओके, और अगर किसी आंटी ने बोल दिया ओह यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, सुपर, कितने का लिया? नियर टू 5 lakhs समथिंग. बोलो 3 लाख का नेकलेस 5 लाख का कब हो गया पता ही नहीं चला. मजा तो तब आए जब वो आंटी और फेंकू चलो और बोले कि हाय आपको सस्ते में पड़ा, मैंने तो ये 7 लाख में लिया था. उससे भी ज्यादा मजा उल्टा कब आए? सपोज 3 लाख का नेकलेस पहन के वो पार्टी में एंट्री मारे, 3 घंटे सबको घूमते हुए दिखाए और कोई एक बार भी तारीफ ना करे कि ये बहुत अच्छा है, तो घर पे आके नेकलेस पे गुस्सा निकालेगी. ये चुभ रहा है. अरे ये यहाँ नहीं चुभ रहा है, दिल में चुभ रहा है, क्योंकि किसी ने तारीफ नहीं की. अदरवाइज उसको नेकलेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोगों की तारीफ में इंटरेस्ट था. इट वॉज प्रेस्टिजियस गुड. तो इन केस ऑफ प्रेस्टिज गुड्स पीपल आर ऑलवेज परचेज कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स. इट वॉज ब्रेकिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. पॉइंट नंबर 7, इमरजेंसी. 7th point is emergency. Right now, in case of emergency, like floods, earthquake, etc. People are ready to pay. People are ready to pay much more higher price. People are ready to pay much more higher price to satisfy basic needs of life. To satisfy basic needs of life. Full stop. Friends, let me give you सीधा practical example. In the year of 2005, 26th July. Friends, मुंबई ये तारीख कभी नहीं भूल पाएगा. 26 जुलाई 2005 का साल, और जो बाढ़ मुंबई में आई थी, 3 दिन में इतना बारिश गिरा था जितना 3 महीने में एक्चुअली नहीं गिरता हो. ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 100-125 सालों में ऐसा बारिश हमने कभी नहीं देखा था. और पूरा मुंबई पानी 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 हो गया. फ्रेंड्स, गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में एसवी रोड पे छाती तक के खंभे, कंधे तक के तो पानी थे एसवी रोड पे. लोगों को पता भी नहीं था कि कितने लोग बच पाएंगे, कितने लोग कहाँ चढ़ के कहाँ बैठे, व्हाटएवर इट इज. उस वक्त पार्ले जी, फ्रेंड्स पार्ले जी, जो एक्चुअली 4 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, एमआरपी 4 रुपीज, वो 100 रुपये में बिक रहा था. द रीजन कि पता ही नहीं था लोगों को कि घर हम कितने दिनों बाद पहुंचेंगे, तो जो कुछ मिला थोड़ा बहुत खा लें. बिस्लेरी पानी की छोटी बोतल जो 5-5 रुपए की होती थी, वो 150 में बिक रही थी, जबकि चारों बाजू पानी ही पानी था, पर वो पीने लायक नहीं था. तो पीने लायक पानी की छोटी बोतल जो 5 रुपए की होती है, वो 150 रुपए की बिक रही थी. एंड पीपल वर रेडी टू बाय इवन एट हायर प्राइस बिकॉज ऑफ दैट इमरजेंसी.
So it was breaking of law of demand. Last point for today's session is branded goods. Branded goods. Underline. Item. Some of the people always prefer to purchase. Some of the people always prefer to purchase branded products. Branded products even though they are costlier. Even though they are costlier. Digvijay Patil. It's not a name, it's a brand. Friends, branded product. वो तो मैं गब्बर इज का जस्ट किडिंग टाइम पास कर रहा था. ब्रांडेड प्रोडक्ट. कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा घुस गया है कि अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना तो वो अच्छा है, इसलिए ज़्यादा पैसे खर्चा करने का. ज़्यादा देखिए, क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. फिर भी प्राइस में यू विल फील ग्रेट डिफरेंस. मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ. फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली बाटा के शूज़ पसंद करता हूँ. अब जो शूज़ में बाटा के पहनता हूँ उसमें कोई अलग से पैटर्न नहीं होती है, कुछ अलग कुछ नहीं है, सिंपल शूज़ होते हैं, सिंपल से शूज़. अगर यही शूज़ मैं फुटपाथ से खरीदूँ तो शायद 300 में मिल जाए, शायद 250 में मिल जाए, पर नहीं बाटा. और मजे की बात, पूरे शूज़ में बाटा का नाम स्टिकर कहीं बाहर तो दिखेगा भी नहीं. वो तो नाम जहाँ लिखा है स्टिकर वो तो अंदर है जहाँ पे पैर आगे है, तो देख के तो कोई पता भी नहीं चल के बाटा के. पर मुझे ये फील होता है कि बाटा है ना तो बेस्ट क्वालिटी है. मतलब अगर मैं 12 घंटे खड़े खड़े लेक्चर भी लेता हूँ तो बाटा के शूज़ है, हाँ तो मेरे को पैर में दर्द नहीं होगा. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बस एक दिमाग में घुस चुका है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हाँ तो ये अच्छा है मेरे लिए. अगर वो प्रोडक्ट रोड से खरीदा 250 वाला शूज़ और पैर सड़ गए तो नहीं, बाटा है तो पैर नहीं सड़ेंगे. तो दिमाग में एक बात घुस चुकी है. फ्रेंड्स, नॉर्मली ना, सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. नॉर्मली अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो जो अंडर गारमेंट्स की एड होती है वो एड में आप देखना, ना तो कभी उसके कोई फीचर, ना तो कभी कोई क्वालिटी, ना तो कभी कोई प्राइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाते. वो कुछ और ही लेकर आते हैं जिसका प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता. सिर्फ ब्रांडेड के नाम पे वो चलते रहता है. अमूल, माचो, ये तो बड़ा टॉइंग है. मेरे को अब तक नहीं समझा कि टॉइंग क्या है. अगर आपको गए साल तक का एड याद हो तो सैफ अली खान आता था, मछली पकड़ता है बड़े आराम से. अब इसमें अमूल माचो क्या करेगा मेरे को अब तक नहीं समझा. चोर चोरी करने आते हैं तो माँ को फ़ोन लगाता है बड़े आराम से. इसमें अमूल माचो क्या करेगा. हाँ फ्रेंड्स, कुछ साल पहले ना एक एड आती थी, ट्रैफिक पूरा जाम होता है तो बंदा आके पूछता है पुलिस किसने रूपा पहना है, तो वो आ रहा है मैंने रूपा पहना है, सबसे आगे फ्रंट लाइन. मुझे एक बात बताओ, ट्रैफिक में कोई उतर के ये बोलेगा कि मैंने रूपा फ्रंट लाइन पहना है, और उससे ट्रैफिक को क्या कनेक्शन था. इससे भी गंदी एड बताऊं मैं आपको. सनी देओल की एड आती थी 3 साल पहले, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो. ट्रेन का कोई चेन खींचता है, ट्रेन रुक जाती है और बाद में रेलवे धन्यवाद बोलता है कि आगे पटरी टूटी हुई थी, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो. इसका मतलब अगर आप ट्रेन में कभी जाओ और चेन खींचना पड़े तो आपको बोलने का कि अंडरगारमेंट कौन सा पहना है, अंडरवियर कौन सा पहना है. क्या कनेक्शन था ये, कुछ नहीं था. इस पूरी एड में आप देखो तो इसमें कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड बात ही नहीं थी, सिर्फ ब्रांड के नाम पे अब बस पैसा दे दो. नॉर्मल अंडरगारमेंट्स जो 50 रुपये में नॉर्मल बिकता हो, लेकिन अगर वो VIP फ्रेंची आ गया तो 50 के बदले सीधा 250 का हो जाता है, जो कि सीधा 300 का हो जाता है, क्योंकि ब्रांड नेम आ गया. तो बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड नेम पीपल आर रेडी टू बाय even at higher price. So I have given you 8 different examples in which we have proved that people are ready to buy even at higher price
or people are not ready to buy even at lower price. That was the topic of exceptions to law of demand. That's enough for this session. Please take care of yourself. Soon I approach you again. Thank you so much.